بھی ہیں، سونے کے دل گلاب سے لہجے ابھی بھی ہیں، تو مانتا نہیں تو میرے دوستوں سے مل، تو مانتا نہیں تو میرے دوستوں سے مل، مانے گا تو خلوص کے رشتے ابھی بھی ہیں۔ دوست کے رشتے ابھی معاشی ایک ایسی ہوتی تھی ربا میں جو پہلے جو ربا نیا بنا تھا کیا حالات تھے دیکھا میں نے بارشیں جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں ربا کے ابتدائی ایام میں چونکہ اکا دکا ٹاما مکانات تھے اور انسانی زندگی کا آغاز اس سرزمین پر ہزاروں سال کے بعد ہو رہا ہے۔ جیسے میں نے کہا تھا نا کہ پہلے یہ شہر ہوتا تھا اندھیری، وہ جو دراصل بات یہ ہوئی تھی کہ جو دریا تھا نا چناب اس نے سائڈ چینج کر دی تھی، وہ ادھر سے گزرا نا تو وہ سارے دبا ہو گئے، ہاں سارا ہو گیا۔ بادل اتنے گنے اٹھا کرتے تھے ہمارے زمانے میں، بادل اتنے گنے اٹھا کرتے تھے کہ بسنے سے پہلی دہشت مچا دیتے۔ کالے سیاہ بادل عموماً شمال مغرب یعنی سرگودا کی جانب سے اٹھتے اور جلدی ہی سارے ربوں کو چھا کر پوری گڑگڑاہٹ کے ساتھ موٹے موٹے قطروں کی بارش شروع کرتے جس سے سارے ربوا میں تبدیلی مچ جاتی۔ وہ اس لیے کہ مکانات کچے اور عارضی بنے ہوئے تھے، بارش شروع ہوتے ہی مکانات ٹپکنے شروع ہو جاتے اور اگر بارش رات کے وقت ہوتی تو اور بھی عذاب بن جاتا۔ گرمیوں میں لوگ باہر سوئے ہوتے تو فوراً اٹھ کر کمروں کی طرف بھاگتے، اندر جاتے بارش کا پانی کمروں سے ٹپک رہا ہوتا بہت، تو پھر فوراً مکان کی چھت پر چڑھ کے مٹی ڈالتے، بس ایسے ہی باہر جاتے صبح ہو جایا کرتی تھی۔ تو یہ حالات تھے اس وقت کے۔ تو اب میں آندھیوں کو ذکر کرتا ہوں کہ آندھی جو ہے اتنی شدید اور کالی سیاہ آیا کرتی تھی کہ خدا کی پناہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا، جو کہ پھر سارے ربا میں تباہی اور افراتفری مچا دیا کرتی تھی۔ کسی کے گھر کی چھت ہو جاتی تو کسی کے گھر کی شاہ برتن والا ہو جایا کرتے تھے۔ آندھی کے تھم جانے کے بعد لوگ اپنی اپنی شاہ ڈھونڈا کرتے تھے، زیادہ تر دودھ والے اس تباہی کا شکار ہوا کرتے تھے۔ آندھی سے سارا گھر سے بھر جاتا، کھانے پینے کی تمام شاہ ریت میں پڑ جاتی، شاہ میں ریت پڑ جاتی۔ آندھیاں بارش کی طرح جانب شمال کی جانب سے اٹھا کرتی تھی، یعنی سرگودا کی طرف۔ بعض اوقات یہ ہوتا کہ آندھی آئی تو پھر وہ ربا کا پیچھا نہ چھوڑتے، پلٹ کر ربا کا رخ کیا کرتی، یا آندھیاں بارشوں سے زیادہ آیا کرتی تھی۔ اس وقت ربا کیا تھا؟ ایک امتحان کا یہ بالکل ہی آندھی والی بات میں خود بھی ربا آندھی سے چیز میں چلا گیا یقین کر کے پیٹیوں کے اندر مجھے ہو جاتی۔ جی حمید الدین صاحب، یہ اردو میں بات کریں۔ ہاں جی، یہ آپ نا اپنا کوئی نہیں آپ ایسا کریں کہ یہ اپنا جو تعلق ہے آپ کا خلیفہ اول سے ان کے بارے میں کچھ بتا دیجیے۔ ہاں بولے کیا بولوں؟ اب وہ کہہ رہے خلیفہ اول کے ساتھ آپ کا جس طرح وہ چلتا رہا سلسلہ، وہ آپ مطلب ان کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، جو تعلق ہے رشتہ ہے وہ بتائیں دوستوں کو پتہ نہیں۔ 1890 میں میرے دادا اور میرے نانا نے دونوں نے بیعت کی تھی۔ کون سے سال؟ اس کے بعد جو ہے وہی قادیان میں ہی وہ رہنا شروع کر دیا، اور میرے جو نانا تھے وہ حافظ قرآن تھے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ تو میرے جو دادا ہیں نا ان کی جو نواسی ہیں امت الحفیظ شمیم، شاعرہ بھی تھی، وہ میری دادی ہیں۔ اور میرے والد صاحب کا نام ہے ڈاکٹر کرنل نور الدین، ان کا نام خلیفہ اول کے نام پہ رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ہمیں احمدیت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور میں 2015 میں یہاں UK کے لیے شفٹ ہوا تھا،
खलीफा खामस मेरे साथ पढ़ा करते थे और मैं उनसे मुलाकात के लिए जनवरी 2015 में गया तो उन्होंने मुझसे सवाल किया कि आप कराची में क्या करते हैं। मैंने कहा अभी तो मेरी रिटायर्ड लाइफ है, वैसे मैं फार्मासिस्ट हूँ। तो उन्होंने कहा आप इधर आ जाएं। उसके बाद मैंने पक्का इरादा कर लिया कि मैं यहाँ आऊँगा बिल्कुल, और मैं आ गया। और अल्लाह ताला के फजल से ताहिर साहब को पता है कि मेरे सारे काम अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे किए हैं और मैं बहुत अच्छे हाल में हूँ। शुक्रिया बहुत बहुत, बहुत अच्छा लगा बातें सारी। ये हमीदुद्दीन साहब और मैं, हम दोनों क्लास फेलो हैं स्कूल से। हमने 1963 में नाइन्थ दाखिल किया हुए और 1965 में जहाँ स्कूल तालीम हाई स्कूल से मैट्रिक किया है। हम दोनों इकट्ठे थे, एक स्कूल बोर्डिंग में रहते थे हम। माशाल्लाह उस वक्त इनकी नज़र बहुत ही कमज़ोर थी, मोटे शीशे इस्तेमाल किया करते थे। अभी भी इनकी नज़र कमज़ोर था, पर अल्लाह ने तौफीक दी, हिम्मत दी, लेकिन बहुत हिम्मत वाले हैं। बावजूद नज़र कमज़ोर होने के बहुत कुछ हासिल किया अल्लाह के फज़ल से। क्या नाम आपका और पूरा नाम? हमीदुद्दीन, इनका नाम हमीदुद्दीन है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा तल्लक उखाड़ा से है। वहाँ पर हमारी 47 शॉप्स थी तकरीबन। उसमें से कपड़े का, जनरल स्टोर का, सारी उस पे कारोबार पे अहमदियों का वो था। आगे 74 आ गया तो मौलवियों को मौत पड़ गई कि अब वो जो वहाँ पर कारोबारी लोग थे ना, जो लगते थे हमारे साथ, उन्होंने क्या किया कि मौलवियों को आगे करके ना हमारी दुकानों के पीछे पड़ गए। वो बाहर उन्होंने छोटे छोटे बच्चे बैठा दिए मदरसे के, हैं जी। तो हर बंदा जो अंदर जाने लगता था उसको कहते थे हम आई अंदर ना जाइए, पंजाबी में हम आई अंदर ना जाइए, काफर ने असी इन्होंने बाइकाट किया है। एक माई बेचारी एक दुकान ते गई, दूसरे ते गई, तीसरे ते गई, जाके ते मेरे स्टोर ते आई ना, तो मैं बाहर ही खलोता सी। मैनू कहती उत्थे एक बच्चा बैठा सा बाहर, ते मैं वो पंजाबी च कर लगा पंजाबी चाहूँगे हो। अच्छा, वो जनाब बाहर बैठी माई पेंडू सी करने वाली बेचारी, वो कहन लगी वे कुत्ते दे पुत्रो मौलवी नूं, वे आखे मैं जिस शॉप जिस दुकान पे जानी है मैनू आंदे ने कि ये मरजाई ने फलाने, तो दूसरे कितने मर गए, दूसरे कितने गए, सारे उन्होंने दुकाना है। तो ये था हमारा अल्लाह के फजलो करम से। अब मैंने पता किया कि 5-6 दुकानें हैं सिर्फ वहाँ। इतना दुख होता है, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इन्होंने हमसे छीन लिया पाकिस्तान, अब इनके पास नहीं रहेगा। इंशाल्लाह नहीं रहेगा, बिल्कुल 100%। अपना नाम ही तो मेरा नाम ख्वाजा ताहिर अहमद जी। मैंने LLB किया हुआ वैसे, तो मैं बिजनेस करता था अपाड़ा में, और लाहौर में भी मेरा बिजनेस था, फिरोजपुर रोड पे, जहाँ से मैं मेडिकल इक्विपमेंट लेके जाता था। तो हाँ, यहाँ से सप्लाई करते थे फिर हॉस्पिटल्स को पुराने। मेरा भाई छोटा वो कार्डियोलॉजिस्ट था, उसमें है अब भी माशाल्लाह प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी। वो मेरे साथ मिलके यहाँ पे हम लोग खरीदते थे हॉस्पिटल से पुराना, यहाँ का पुराना भी वहाँ के नए से बहुत अच्छा है। बड़े भाई थे वो बेचारे कहते थे यार वहाँ की खिदमत करो, जाके वहाँ ये इंस्टॉल करो इसको, ये अपने ECG मशीन, सॉरी कार्डियोलॉजी मशीन। तो मैंने एक हॉस्पिटल के साथ रब्ता किया, सरजी मेड हॉस्पिटल, बड़ा मशहूर हॉस्पिटल था। तो उनका डायरेक्टर जो था ना, वो किसी ज़माने में अहमदी था, अब भी बट अहमदी था तकरीबन 2 था। तो जब उसके साथ मेरा रब्ता हुआ उनके साथ, तो उन्होंने क्या किया कि मुझे वहाँ पर ना पैसे लेके इंस्टॉल करवाया। मुझे 2-3 साल लग गए। मैं उनको प्रोफेसर डॉक्टर नहीं कहता, मैं कहता हूँ डाकू। दे आर नॉट डॉक्टर,
क्योंकि वो हॉस्पिटल में जॉब करते थे और यहाँ पर प्रैक्टिस प्राइवेट 95 में उनकी जो फीस थी ना वो 500 रुपया अंदाजा लगा एक मरीज की 95 में। अब तो लेते हैं 5-6 हज़ार रुपया। वो सारे के सारे मैं कहता था ये डॉक्टर नहीं डाकू है। मैंने ये डॉक्टर जो मौलाना तारक जबील है ना, इसका छोटा भाई ताहिर कमाल साहू, मैंने उसको हायर किया। वो PIC में काम करता था, उसको हायर किया। बेचारा वो जेंटलमैन, तो उसको हायर जब किया तो वो मेरी मशीन पे काम करने लगा। मैं जलसे पे आ गया यूके, मैं यूके आ गया। तो यहाँ से मैं जब वापस गया ना तो मैं देखा बोर्ड भी ख़त्म, सब कुछ ख़त्म हुआ हुआ है वहाँ पर। तो मैंने हुआ क्या है, वो जो वहाँ की लेडी थी ना, एडमिनिस्ट्रेटर थी, वो बड़ी मक्कार चालाक थी वो। तो मुझे कहने लगी कि भाई ताहिर भाई आप क्या छोड़ गए थे वहाँ पर, वो तो खैराती अस्पताल बनाने लगा था इसको। मैंने कहा क्या हुआ क्या मिस्टर खान, पता तो चले। मैं उसी वक्त मैंने ड्राइवर को कहा गाड़ी निकाल लिया। मैं गाड़ी निकाली, मैं PIC चला गया, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कैडर। वहाँ पर वो असिस्टेंट प्रोफेसर था ताहिर कमाल। तो मैं वहाँ गया तो मैंने जाके देखा कि डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं। कहने लगे कि वो अंदर मरीज को चेक कर रहे हैं, 15 मिनट लगते हैं। मैं बैठ गया वहाँ पर। वो आया तो मैंने कहा कि मैं मुझे देखते जप्पी डाली उसने तो मैं कहा जी। कहने लगा यार वो केड़े चोरों को मैंने डाकुओं को वास पा रहा है। मैं कहा होया कि कहता यार मेरे गाँव से ना वो तलम्बा का रहने वाला है, वो डॉक्टर तारिक मान। कहता वहाँ से ना एक बेचारा मरीज आया मेरे पास, हार्ट का मरीज था। कहने लगा मैंने नया नया यहाँ से शुरू किया था यहाँ पर। तो आया और मुझे कहने लगा कि मैंने उससे कहा कि यार तुम्हारा जो कंडीशन है ना वो इतनी अच्छी नहीं है, तो इसलिए पैसे लगेंगे। वो कहता जी मैं तो बकरी बेच के, अंदाजा लगाया, कहता मैं बकरी बेच के यहाँ तक पहुँचा हूँ तलम्बा से। तो उसकी आंखों में आंसू आ गया डॉक्टर। वो कहने लगा कि ये 300 रुपया पकड़ जेब में डाल, 500 से 500 जेब में डाल और वापस जा, मैं तुम्हें दवाइयाँ लिख देता हूँ। हाँ जी, तो जो हॉस्पिटल वालों का हिस्सा ना वो भी नहीं तुमने देना। तो 200-300 वो लेते थे, 300 भरा होता था। खैर वो कर करा के वो चला गया। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आप क्या हुआ, क्या कहा लान तो भेजो यार डॉक्टर ने। मैंने क्यों, आप भी तो डॉक्टर हैं। कहते ये डाकू है, डॉक्टर नहीं है। तो ये वहाँ पर केस, आप पता नहीं क्या होगा, कितनी फीस लेते होंगे, एंजियोग्राफी करते भी हैं कि नहीं, वैसे ही टाल देते हैं कई डॉक्टर। बस ये है जी, अब तो बस अल्लाह ही रहम करे, अल्लाह बदल। अब तो पूरा मुल्क की डाकुओं के कब्जे में आ गया, वन टू ऑल। कोई पोजीशन नहीं, कुछ नहीं, उससे वैसे ही बिल्कुल वैसे ही है सारा कुछ। हॉस्पिटल 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार रुपया फीस है, अंदाज़ा लगाएं जरा। वो जो बेचारे गाँव वाले या वैसे होते हैं, पैसे नहीं होते, वो फिर ये पीरों के वो शुभ शुभ सरकार और फलाना वो गुरुओं का पट्टा सारे ही मर्दों का वो इलाज करता है। वो अब उसकी निकाली है ना करारुल असर सारी शुभ शुभ, उसको बताया भी ये तो है क्या। और ये है तो बहुत चलो शुक्रिया ताहिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी मालूमात दी आपने। आज मैंने कई नए जो हमारे मेहमान हैं, मेंबर्स हैं, उनसे बात की है तो अच्छा लगा। शेख साहब आज फिर गए, अच्छा तैयारी कर